Assalamu alaikum students of class 9th. How are you? This is Miss Shehnaz, your physics teacher. Students, today we'll start new chapter. That's chapter number 1, introduction. That is related to the introduction of physics. In this chapter we'll discuss inshallah about the detail of physics, that what is physics or what are the branches of physics, and regarding many more topics about the physics, that how many steps of scientific method. So in detail we will explain inshallah. Then after that one more topic I will explain to you, that what are the contributions of the Muslim physicists especially. We will not discuss about the contribution of other scientists, only Muslim physicist contributions we will discuss in this video inshallah ta'ala. See students, the very first question is about defining the physics, that what is physics. So for answer you will see your book, come on page number 2. See that in the second paragraph of page number 2 the definition of physics is written over here. So first, in the first line of the second paragraph you can see that the word physics comes from a Greek word that is physikos, which means nature. Okay, so when you define physics, so from here you can define that it is defined as a science which deals with the interaction of matter and energy. So it's very simple definition. Okay, this is the branch of science which define or which explain the interaction between matter and energy. So it's very clear to you. So you can write down from book, the definition is quite clear, so you can see that. And after that the next question is about the branches of physics. So I wrote on the board what are the branches of physics. So in book each branch has been defined. So from book or with the help of book you can define each branches of physics. Yes students, you can see in the book, again come on page number 2, the branches are written over here. Although I have explained all these branches in the class, in physical classes, when you were taking before the lockdown, so each branch has been explained to you very clearly, but again I am telling you that you will write down the branches in detail from the book. The first one is the mechanic. The second one is electricity, then number 3 electromagnetism, number 4 solid state physics, number 5 atomic physics, number 6 nuclear physics, number 7 plasma physics, number 8 biophysics and number 9 एस्ट्रोफिज़िक्स. इसके अलावा भी मैनी और ब्रांचेस हैं, लेकिन हमने जो डिटेल पढ़नी है वो इन्हीं ब्रांचेस से रिलेटेड पढ़नी है. लाइक मैकेनिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, बट कॉपी डाउन करने के लिए आप वीडियो की हेल्प ले लीजिएगा, या फिर अगर बुक्स आप लोग बाय कर चुके हो तो फिर बुक से भी लिख दीजिए. वैसे बोर्ड पर मैं आपको तमाम डेफिनेशंस बहुत डिटेल से लिखवा चुकी हूँ. But from here you can take out the screenshot, and after taking the screenshot you can copy down the definitions. Okay, see the number 1, mechanics क्या है? It deals with the motion of objects with or without the reference of force. Similarly, all the definitions are quite clear over here, so you may copy down these all definitions from the book. Now see the next question, that is about the scientific method. What are the scientific methods? Describe each step. So about the scientific method in many more in very much detail I have explained in the chemistry video. So for taking the details you may open the video of chemistry on YouTube, then you may found the answer of scientific method. So you can write it down, the definitions which are the same in the physics. Okay, so you may write down the definition of scientific method and the steps like this start from observation and ends up the scientific law. So you may write down all the definition from chemistry video, or with the help of the chemistry video you may copy down. See the next question, that is related to the contribution, like what are the contributions of Muslim physicists. Muslim physicists के अलावा और भी जर्मन और इंग्लिश साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ मुस्लिम साइंसदान के हवाले से जो फिज़िक्स के हवाले से कॉन्ट्रीब्यूशंस मेंशन हैं वो ही आपको लिखनी हैं. So for the contribution of Muslim physicists, now first of all see page number 7. Then the contributions of different Muslim scientists are mentioned on the next pages, like 8 and 9 pages will be covered.
Okay, now come on page number 8. Here you can see that different scientists with the contribution are mentioned over here with their duration. सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है एक नाम अबू अली हसन इब्नुल हैथम. सो इब्नुल हैथम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में कह दिया जाता है समटाइम. इनका ड्यूरेशन यहाँ पर मेंशन है, तो ड्यूरेशन आपको जस्ट फॉर द एमसीक्यूज़ आप अगर मेंशन करना चाहें तो कर दीजिएगा, वरना इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे कंट्रीब्यूशन के बारे में कहा जा रहा है, तो जस्ट राइट इट डाउन द कंट्रीब्यूशंस. ओके, अब आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन को मेंशन कैसे करना है अपनी कॉपीज़ के अंदर. आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इनके सिटी का बताया कि किस सिटी, यानी ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है. इनका आपने ये मेंशन करना है कि कहाँ के ये साइंटिस्ट थे. लाइक यहाँ मेंशन है कि अबू अली हसन इब्नुल हैथम वॉज बोर्न इन बसरा. अब बसरा में किस सिटी में, किस कंट्री के किस सिटी में ये थे, तो वहाँ पर जो है आपने एक्सप्लेन करना है इन पॉइंट्स. कोशिश कीजिएगा कि तमाम चीज़ें आपने पॉइंट्स के अंदर मेंशन करनी हैं. फिर किन किन फील्ड्स के अंदर वर्कआउट किया, तो वर्क फील्ड की हेडिंग डालकर आप इनके वर्क फील्ड्स लिख सकते हैं. जैसे इन्होंने किस किस चीज़ में स्कॉलर लिया था, किस में स्कॉलरशिप इन्होंने गेन की था. नंबर 1 मेंशन है फिज़िक्स, फिर मैथमेटिक्स, देन इंजीनियरिंग, देन एस्ट्रोनॉमी एंड देन मेडिसन. तो ये इनके वो वर्क फील्ड थे जिन्होंने इनको मोस्ट फेमस बनाया इन द वर्ल्ड और स्पेशली इन द साइंटिफिक वर्ल्ड. तो इनका नाम हर एक की ज़ुबान पर है क्योंकि इनकी वर्क फील्ड जो है बहुत ज़्यादा थी और हर एक में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया. फिर कंट्रीब्यूशन की हेडिंग डालकर आपने पॉइंट आपने मेंशन करना है. जैसे पॉइंट नंबर 1 आपने लिखना, 1 2 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डॉट डाल दीजिएगा, स्टार बना दीजिएगा, कोई भी आप सिंबल बना दीजिएगा. नंबरिंग और काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है. आपने यहाँ पर 3 कंट्रीब्यूशंस, और अगर 3 से कम है तो आप 3 से कम यानी 1 और 2 कंट्रीब्यूशंस भी लिख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखिएगा. यहाँ पर लिखा हुआ ही रोट मैनी बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स. 1 पॉइंट पर आप ये कह सकते हो. देन अब किन किन टॉपिक्स पर लिखी हैं, लाइक इनकी जो बुक्स थी वो ऑप्टिक्स पर थी, और ऑप्टिक पर जो बुक थी उसका नाम क्या था, किताबुल मनाजिर था. उसके बाद ये इनकी एक कंट्रीब्यूशन हो गई. दूसरी कंट्रीब्यूशन इनकी जो थी जिसमें इन्होंने स्कॉलर्स दिया और बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, और उसके हवाले से जो है ये इन्होंने यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो इनका मतलब बहुत ज़्यादा वर्कआउट था वो और किस हवाले से था. लाइक अगर आप इनका नेक्स्ट पैराग्राफ अगर आप रीड आउट करते हो तो नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो था नेचर ऑफ लाइट के हवाले से. और नेचर ऑफ लाइट के हवाले से आप ये पूरा पैराग्राफ अच्छी तरीके से इसकी थॉरोली रीडिंग करेंगे. आप थॉरो रीडिंग से आपको इसमें बहुत ईजीली आपको इनके बुक्स के नेम्स आपको पता चलेंगे. बुक्स के नेम्स अंडरलाइन कर देंगे. आप चाहो तो बुक्स के नेम्स भी आप लिख सकते हो, वो भी कंट्रीब्यूशन में आ जाता है. और अगर बुक्स के नेम्स नहीं मेंशन करना चाहते तो आप मेन इनके कंट्रीब्यूशंस लिख सकते हैं. जैसे आपने ऊपर बता दिया कि इन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स पर स्पेशली ऑप्टिक्स पर बुक लिखी. फिर आपने बताया कि इन्होंने नेचर ऑफ लाइट को डिस्कवर किया. उसके बाद इन्होंने जो है इमेज ऑफ सन एक्लिप्स के हवाले से इन्होंने बात किया. सन एक्लिप्स के बारे में जो है इनका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन था. और जो सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन था इब्नुल हैथम का वो था इन्होंने एक कैमरा डिस्कवर किया था, कैमरा इन्वेंट किया था जिसको पिन होल कैमरा के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था वो. तो इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ भी पिन होल कैमरा की बात आती है फ़ौरन ही इब्नुल हैथम का नाम जहन में आता है, या जैसे ही इब्नुल हैथम का नाम लेते हैं तो फ़ौरन ही इनकी जो ग्रेट कंट्रीब्यूशन है पिन होल कैमरा, तो वो हमारे सामने वेरी क्लियर आ जाती है. तो ये 2 से 3 कंट्रीब्यूशंस आप इसमें से सिलेक्ट करके अपनी कॉपीज़ के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा. दैट्स इनफ. डू नॉट कॉपी डाउन द होल पैराग्राफ्स. ओके, जस्ट टेक आउट ओनली few contributions from these 2 paragraphs so that I explain to you. So you may copy down these contributions, or if you want to write another contributions you are allowed to write down the contributions but select from only these 2 paragraphs. Okay, then come toward the next scientist. He was याकूब इब्ने इसहाक अल-किंडी. अल-किंडी के भी जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं. इनका बोर्न पीरियड लिखा हुआ है यहाँ पर. इसके अलावा इनका वर्क फील्ड भी यहाँ पर मेंशन है एंड इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इस पैराग्राफ में मेंशन है. सो यू मे कॉपी डाउन ओनली 2 और 3, और अगर 2 3 नहीं है तो यू मे राइट डाउन ओनली 1 कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस पैराग्राफ.
कम ऑन पेज नंबर 9। सो पेज नंबर 9 पर भी आपको एक और यहाँ पर बहुत फेमस साइंटिस्ट आपको नज़र आएंगे। ही वॉज अबू रिहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी। तो अब यहाँ पर फुल नेम लिखा हुआ है, सो नो नीड टू राइट डाउन द फुल नेम, ओनली यू कैन राइट डाउन अल बैरूनी, दैट्स इनफ। सो यहाँ पर भी अल बैरूनी का बोर्न पीरियड लिखा हुआ है, सिटी और कंट्री नेम लिखी हुई है, वो तमाम चीज़ें आपने पॉइंट्स बना के लिख दीजिएगा। उसके बाद जो मेन इनकी जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, सो यू मे रीड डाउन द पैराग्राफ and just write down the contribution in points. Then next come towards डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो बहुत से लोग इनको अभी भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी थे ये साइंटिस्ट। आपको अगर मैं पिक्चर दिखाऊँ उनकी तो आप देख सकते हो कि इनके फ़ोटो के अंदर आपको याद आएगी शख्सियत, पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा इनके जो है फेमस इनको इनका वर्क फील्ड इनकी फ़िज़िक्स थी, और वर्क फील्ड फ़िज़िक्स के में ही इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे काम सर अंजाम दिए कि जिसमें इनको नोबेल प्राइज़ भी इन्होंने गेन किया था, तो इनको अवार्ड मिला था। और इसके अलावा जो है इनका जो वर्क था बहुत फेमस वर्क था, और वो फेमस वर्क था इनका जिस फील्ड में इन्होंने काम किया उस पर था कि ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी इन्होंने एक इस्टेब्लिश की थी, जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा इनको अप्रिशिएट किया गया था, और बहुत ज़्यादा ओल्ड भी 1979 में इन्होंने जो ये इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि GUT शॉर्ट फॉर्म में इसको हम आज स्टडी भी करते हैं, बहुत डिटेल्स हम इसको स्टडी करते हैं। GUT के अक्सर जो है MCQs के अंदर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आपने इसकी फुल फॉर्म को बहुत अच्छे से हाईलाइट करके मेंशन करना है। G मीन्स ग्रैंड, U मीन्स यूनिफिकेशन एंड T थ्योरी। तो यहाँ पर GUT रिप्रेजेंट्स ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। तो यहाँ पर आप ये चीज़ लिखने के बाद इनका वर्क फील्ड लिख दीजिएगा और बता दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो किस फील्ड के हवाले से थी। Then after that the last contribution of Muslim physicist come on page number 10। यहाँ पर हमारे पास एक और बहुत ही फेमस डॉक्टर का नाम आपको मेंशन किया हुआ है, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। ये भी बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इनको पीरियड नहीं हुआ हमारे दरमियान से गए हुए, तो इनकी भी यहाँ पर इनका ड्यूरेशन 1936 इनका जो मतलब बोर्न पीरियड है वहाँ से लेकर इनकी स्कॉलरशिप किस चीज़ में इन्होंने लिया और किस तरह से इन्होंने अपने आप को फेमस करवाया, तो इनकी कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। तो यहाँ से भी इनकी सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन आप आराम से अपनी कॉपी के अंदर मेंशन कर सकते हैं। Now students, come towards your given assignment in which each and everything is mentioned to you, but the most important thing is that this assignment is also totally dependent on video. So if you do not watch the video, then you will not be able to write down the answers of the questions which are given in this worksheet. Okay, so first of all the important note is mentioned over here कि you will have to make title page of chapter number 1 with introduction to physics. On the very second page you will have to make another title page of the question answers regarding the chapter. So the questions are mentioned on the sheet and you may copy down question one by one and answers which have been explained in the video. With the help of your textbook you may write down the answers I explained. I show you the page numbers in book. So from the book you may write down the answers of the given questions in worksheet. Okay, but here you can see that the last question is totally different, which is not in chapter number 1. I want to say in chapter number 1 you will not find out this question because this is an extra or additional question just for your memorize. When inshallah ta'ala when you will be with us in physical classes, then this question is very much important, means the learning of this question is very much important in that physical classes. So I want that when you will join us, then before joining you must learn or memorize these all symbols before coming in the class. Okay, so actually this question is about the symbols. बहुत ईजी है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ पर लिखिएगा और उनको याद करके आइएगा। जैसे कुछ क्वांटिटीज़ हैं उनके सिंबल्स आपको याद करने हैं। लाइक फर्स्ट आपको दिया हुआ है मैंने यहाँ पर डेसी, इसका सिंबल हम स्मॉल डी। जब भी हम डेसी की बात करेंगे तो हम सम टाइम हम सिंबल्स एक्चुअली शॉर्ट एब्रीविएशन फॉर्म होती हैं। जब हम फुल स्पेलिंग नहीं लिखना चाहते तो उसकी जगह हम कुछ शॉर्ट सिंबल्स कुछ आइडेंटिटी के लिए हम डिज़ाइन कर लेते हैं, कुछ लेटर्स कुछ भी चीज़ हम डिज़ाइन कर लेते हैं जिनको फिर हम उन फुल नेम्स की जगह यूज़ करते हैं। जैसे डेसी की जगह हम स्मॉल कैपिटल नहीं स्मॉल डी हम यूज़ करेंगे। सेंटी की जगह हम सी, मिली स्मॉल एम, माइक्रो
का सिंबल आप देख रहे हो कि ये यू है, लेकिन एक आप इसका सिंबल का डिज़ाइन देख सकते हो, इसको किस तरीक़े से ड्रॉ किया गया है। तो आपने बनाने का तरीका सीखना है। स्पीड के लिए हम वी यूज़ करते हैं, स्मॉल वी, और एक्सेलरेशन के लिए हम स्मॉल ए, वॉल्यूम के लिए हम कैपिटल वी। क्योंकि स्पीड के लिए हमने स्मॉल वी यूज़ कर लिया, तो हम वॉल्यूम के लिए कैपिटल वी को यूज़ करेंगे, जस्ट फॉर मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वॉल्यूम। देन फोर्स के लिए फिर हम कैपिटल एफ का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास अदर क्वांटिटीज़ हैं, लाइक नैनो की अगर हम बात करते हैं तो नैनो इज़ वेरी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। इसको हम शो करने के लिए बार बार पूरी स्पेलिंग लिखकर टाइम सेव करेंगे, हम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम सेव करने के लिए हम स्मॉल लेटर स्मॉल एन का यूज़ करेंगे। इसी तरह से पिको के लिए हम स्मॉल पी, और यहाँ पर है फेम्टो के लिए हम स्मॉल एफ, ऑटो के लिए स्मॉल ए, एंड प्रेशर के लिए हम यहाँ पर पी, कैपिटल पी हम यूज़ कर सकते हैं। वर्क के लिए कैपिटल डब्ल्यू, चार्ज के लिए स्मॉल क्यू, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL, मोल के तौर पर हमने ये यूज़ करना है। ठीक है, so you may see the whole statement, that's quite clear. I will explain each and everything, but still if you have any kind of confusion you may contact with me, or otherwise if you are not able to contact with me in this week, so inshallah I'll explain each and everything once in the physical classes when we will meet together, inshallah ta'ala. Hopefully you have cleared about each and everything. Now take care. Allah Hafiz.